بہت سے لوگ اور خدا کا شکر ہو کہ خدا وہاں پر اپنی کلیسیا کو بڑھا رہا ہے اور پر ایٹ دا سیم ٹائم خدا نے مجھے یہ پریولیج دیا ہے کہ میں نیشنز میں جا کر خدا کی خدمت کر سکوں اور ان دنوں میں پاکستان، بنگلہ دیش اور اب میں آج کل دبئی میں ہوں 2 دن کے لیے صرف 2 نائٹس کے لیے اور آج رات میں واپس چلا جاؤں گا پاکستان. پھر 3 دن صرف پاکستان میں رہ کر میرا ایک لانگ ٹرپ ہے برازیل کا جہاں پر اراؤنڈ 20 ڈیز کے لیے موسٹ پرابیبلی 20 ڈیز کے لیے 15 سے 20 ڈیز کے لیے نان اسٹاپ مجھے استعمال کرے گا. تو یہ میری خدمت کے تعلق سے بریف انٹروڈکشن ہے جو میں دینا چاہتا تھا آپ کو تاکہ آپ اویئر ہو سکیں اس طور سے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں یہاں پر اپنی پریئر ریکویسٹ چھوڑ کے جاؤں کہ جب آپ لوگ اپنی پرسنل پریئر میں مختلف قسم کے اسائنمنٹس جو خدا آپ کو دیتا رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خدا کے خادموں کے لیے بھی دعا کریں. اسپیشلی جب ہم ٹریول کرتے ہیں، آپ پاسٹر بھی یقیناً ٹریول کرتے ہوں گے، تو اسی طرح سے جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم مل کر خدا ان کی کنگڈم کو اور زیادہ اسٹیبلش بھی کرتے جائیں اور ایکسٹینڈ بھی کرتے جائیں. آمین. سب کہیں آمین. پریز دی لارڈ. سو اس وقت جو خدا نے میرے دل پر بوجھ رکھا ہے کہ میں شیئر کروں، یہ وہ اسائنمنٹ ہے جو پچھلے 2 سالوں سے خدا نے مجھے دیا ہے. 2021 میں 2022 میں میں پاکستان میں ایک کانفرنس لے رہا تھا اور کانفرنس لینے سے پہلے اسلام آباد میں جو لوگ اسلام آباد سے ہیں، کنونشن سینٹر اسلام آباد، وہاں پر میری کانفرنس تھی اور میں ابھی اپنے ہوٹل میں تھا اور میں دعا کر رہا تھا. تو پھر میں نکلنے لگا اور when I was leaving the room I felt کہ خدا کے پاک روح نے مجھے کہا کہ میں رکوں اور میں رکا اور میں نے شکیب کو میسج کیا. میں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میں اور ابھی کمرے میں ہوں تو میں نکلتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. اینڈ آئی واز ان دا روم اور میں نے یہ فیل کیا کہ جب خدا نے مجھے یہ کہا کہ میں دعا کروں، آئی اسٹارٹڈ پریئر اور دعا کے دوران میری آنکھیں بند ہو گئی اینڈ آئی اسٹارٹڈ ٹو انٹرسیڈ. میں نے شفایت کرنی شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا. اینڈ آئی فیلٹ میرا پہلا جو میری پہلی کنوکشن تھی، آئی تھاٹ کہ خدا مجھے اس پرٹیکولر کنونشن کے لیے آنسو دے رہا ہے کہ میں رو سکوں اور میں روتا جا رہا تھا اور دعا کرتے چلا جا رہا تھا. اینڈ دین میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ میرے کمرے کے اندر اسموک ہی اسموک ہے. آئی ڈنٹ شیئر دیٹ ایکسپیرینس بیکاز خدا نے مجھے پرمٹ نہ کیا کہ میں شیئر کر سکوں اس کانفرنس میں اور خدا نے مجھے کہا کہ اس کو ہولڈ کر کے رکھ بیکاز اٹس فار اے اسپیسیفک ٹائم. آپ جانتے ہیں ڈینیل کو جیسے خدا نے کہا تھا کہ ان باتوں کو پوشیدہ رکھ کیونکہ یہ خاص سمے کے لیے ہے. تو خدا جب کبھی کبھی آپ کو ویژن دیتا ہے، خدا آپ کو کہتا ہے کہ ابھی تو نے اس کو شیئر نہیں کرنا، ریلیز نہیں کرنا. اور میں جب اس کمرے میں اسموک کو دیکھا میرا فرسٹ ریئیکشن یہ تھا کہ آئی ہیو ٹو کال سم ون کہ کمرے میں آگ لگ گئی ہے. اور حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی اور میں اپنا فون ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسموک کی وجہ سے مجھے فون بھی نہیں مل رہا تھا. Then I audible voice خدا ان کی اور خدا نے مجھے کہا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ میری پریزنس ہے. اور خدا نے کہا یہ میری پریزنس ہے اور میں اپنے جلال کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں اور میرا جلال اس بات کا اسائنمنٹ تجھے دیتا ہے کہ تو جا. اور یہ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. That's I'm talking about 2022. And God said in 2023 go into 23 countries of the world and tell them get ready for my glory. خدا نے کہا 23 ملکوں کے اندر جا اور ان ملکوں کو جا کر یہ کہے کہ میرے جلال کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. At that time I didn't realize کہ اس کا مطلب کیا ہے، خدا کیا کہنا چاہ رہے. اور خدا نے کہا آنے والے سمے میں تیرے اور زیادہ ڈیٹیل میں باتیں کروں گا اور میں تجھے بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. Now that's 2022. Okay? 2022 کی میں بات کروں. 2023 میں 18 ڈفرنٹ کنٹریز میں خدا مجھے لے کر گیا اور میں نے خدا سے ریکویسٹ کر کے باقی جو ریسٹ آف دا کنٹریز تھے 5 کنٹریز میں نے خدا ان سے کہا ٹو مچ ہو گیا میرے لیے، میں ٹریول نہیں کر سکتا.
And I didn't realize, Pastor Ji, कैसे invitations आना शुरू हो गई, unexpected तौर पर, unexpected तौर पर. और बहुत सी जगहों पर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, I cannot come. तो जब नवंबर 2023 लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर 2023, नवंबर का मंथ वो है जब मैं प्रेयर एंड फास्टिंग में होता हूँ. और मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर मैं अवॉइड कर सकूँ ट्रैवल करना, मिनिस्ट्री के लिए ट्रैवल करना, तो मैं अवॉइड करूँ, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस. एंड आई वाज फास्टिंग एंड प्रेइंग, और मैंने खुदा से कहा 2024 के लिए असाइनमेंट क्या है, और खुदा ने कहा much greater glory. Now in 2022 God said glory, but in 2024 God said much greater glory. When I heard that, मैंने इस बात को रियलाइज किया कि खुदा की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न मेरे और आपके लिए है वो ये है कि हम खुदा के जलाल को देख सकें. And started to study God's word. और अभी थोड़े समय के लिए मैं आपका ध्यान खुदा के जलाल की तरफ लेकर जाऊंगा. You see, इन दिनों में अगर किसी चीज की जरूरत आपको और मुझे है तो वो खुदा के जलाल. और अगर and unfortunately अगर आप throughout the Bible देखें, सिवाय दो लोग जिन्होंने डिजायर किया खुदा के जलाल को, और कोई हमें नजर नहीं आता. उस तौर से, जिस तौर से परस्यू किया, जिस तौर से डिजायर किया, अर्नेस्टली डिजायर जिसको कहते हैं, वो सिर्फ दो लोग हमें नजर आते हैं. एक पुराने अहदनामे में शख्स जिसका नाम क्या है, मूसा. और मूसा वो शख्स है जिसने खुदा के जलाल को डिजायर किया. तो आइए मेरे साथ खोले, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है. मैं चाहूंगा एक हवाला हम निकालें और उसके बाद फिर मैं ज्यादा डिटेल्स आपको बताऊंगा खुदा के कलाम से. हरूज की किताब, Book of Exodus, Book of Exodus, chapter 33. आइए देखिए, Book of Exodus या खरूज की किताब और उसका 33वां बाब, और हम उसकी 17 and 18 वर्स को पढ़ेंगे. यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है. मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे. उसने कहा 17 जी. उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा. आमीन. नो, अब सुने, जब खुदा ने मूसा से कहा, लेट मी गिव यू कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि मूसा ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की. मूसा के लिए खुदा के जलाल को देखना या जानना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी मूसा के लिए, इसलिए कि मूसा की इवन मिनिस्ट्री का आगाज खुदा के जलाल को देखने के जरिए से हुआ. आप जानते हैं, जब मूसा उस वीरान जगह में, विल्डरनेस में था, ये वो जगह है जो भाई ऐसी जगह है जहां पर आप ऐसे डेजर्ट को देख सकते हैं जहां पर किसी एक जगह पर एक झाड़ी आपको नजर आए. और स्पेशली आज सुबह जब मैं ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पर आप के चर्च में आ रहा था, तो मैं रास्ते में ऐसी जगहों को देख रहा था और मैं कह रहा था कि कितना ज्यादा ऐसी जगह नजर आती है जहां पर आपको रेत ही रेत नजर आती है, मिट्टी ही मिट्टी नजर आती है, और वहां पर एक छोटी सी झाड़ी है. और उस जगह पर जब मूसा ने गुजरते हुए उस जगह को देखा, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो एक झाड़ी को देख रहा है और उस झाड़ी को जलता हुआ देख रहा है. और वो झाड़ी जल रही है लेकिन वो खत्म नहीं हो रही. इसी याद रखें इस बात को, जब खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों के ऊपर होगा तो आप जलते रहेंगे लेकिन आप खत्म नहीं होंगे. आपकी फायर कभी खत्म नहीं होगी. और ये इसलिए है कि खुदा का जलाल आपके ऊपर है और खुदा की हुजूरी आपके अंदर है.
मूसा उस झाड़ी को देख रहे और वो झाड़ी जल रही है और वो जल रही है और वो जल रही है और मूसा बाइबल का सुन के वो और थोड़ा सा करीब हुआ कि वो उसे देख सके। लेकिन जब वो उसके करीब हुआ तो आवाज खुदा की आई और खुदा ने कहा मूसा मत आगे जा उस वक्त तक जब तू अपने आप को प्रिपेयर ना करे। और प्रिपरेशन क्या थी कि तू अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। नो ये प्रोटोकॉल है। मेरी बहनों भाइयों, मेरे पास इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको प्रोटोकॉल जो खुदा के कलाम में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का जिक्र है वो बता सकूं, लेकिन वन ऑफ द प्रोटोकॉल ये है कि अगर आप खुदा की आवाज को सुनकर उसको ऑनर करेंगे, ये प्रोटोकॉल है, तो खुदा आपके लिए सुपरनैचुरल तौर पर ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोलता जाएगा। मूसा ने खुदा की आवाज को सुना और खुदा ने कहा मूसा अपनी जूती उतार दे, और मूसा ने अपनी जूती उतारी और मूसा आगे गया और खुदा उस झाड़ी में से उसके साथ बोला। Now that was the first time जब मूसा ने खुदा के जलाल को देखा। Now खुदा उसको यहां से, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि क्यों मूसा ने ये कहा खुदा मुझे अपना जलाल दिखा, Lord show me your glory, I want to see your glory. Why he said that when he already have seen the glory of God not once, not twice, but number of times. क्या वजह है कि वो बार बार खुदा के जलाल को देखने के बावजूद भी खुदा को ये कह रहे हैं Lord I want to see your glory। क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड कर सके इस बात को। नो मूसा, खुदा ने मूसा को कहा मूसा मेरे लोग रो रहे हैं और मैंने अपने लोगों के रोने को सुना है और मैंने तुझे लिया है कि तू जाए और मेरे लोगों को रिडीम करवाए। ना टाइम कितना हो चुका था? कितना टाइम हो चुका था? ओवर 400 years, 430। नो गौर से सुने, टाइम क्या था कि खुदा ने उनको रिलीज करवाना है? 400 years, 400 years। प्रोफेटिक वर्ड थे। पैसेज इस बात को आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि खुदा ने जब अब्राहम को कहा था कि तेरे लोग कैप्टिविटी में जाएंगे और फिर उसके बाद 400 इयर्स के बाद मैं उन्हें निकालूंगा, लेकिन इमेजिन करें कि उन 400 इयर्स के 1 साल गुजरने के बाद भी, 2 साल गुजरने के बाद भी, 10 साल गुजरने के बाद भी कोई ऐसा, वो रो रहे हैं लेकिन उनमें से कोई नहीं जो इस बात को डिजायर कर रहे खुदा हमें निकाल। इसका मतलब यह है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ सेटल हो चुके हैं उस जगह पर। और आज एक बहुत बड़ा मसला यह है कि कभी कभी हम इतना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम के साथ सेटल हो जाते हैं कि हम कहते हैं अब हमें जरूरत नहीं है कि हम निकले, इसी हालत में हम ठीक है। और खुदा कभी नहीं चाहता कि खुदा हमें ऐसी ही हालत में रखे जिस खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ खुदा ने कलाम किया हुआ है। अगर खुदा ने आपको प्रॉमिस दिए हुए हैं, 3 तरह के प्रॉमिसेस बाइबल मुकद्दस में हैं। कंडीशनल प्रॉमिसेस नंबर 1, नंबर 2 अनकंडीशनल प्रॉमिसेस, मशरूती गैर गैर मशरूती या मशरूती वादे जिसके साथ कोई शर्त हो। कंडीशनल प्रॉमिसेस जिनके साथ कोई शर्त, इफ माय पीपल, अगर मेरे लोग खुदा कंडीशन रखता है। But then third promises, जो मेरे फेवरेट promises हैं, prophetic promises, नबूवती वादे। Thus says the Lord, hallelujah। खुदा फरमाता है, ओ मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब खुदा फरमाता है कि मैं ये करूंगा तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमजादे के अपना इरादा बदले। वो कह चुका है और वो करेगा और कोई उसका हाथ नहीं रोक सकता या उसे कह नहीं सकता कि तू क्यों करता है। हालेलुया। ये है मेरे और आपके खुदा की कुदरत, ये है मेरे और आपके खुदा के जलाल। तो खुदा अब्राहम के जरिए से बोला, खुदा के लोगों को प्रॉमिसेस याद थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस बात के लिए डिजायर नहीं कर रहा कि खुदा का जो प्रॉमिस है वो पूरा हो सके। लेकिन खुदा अपने वादों को भूलता नहीं है। याद रखें, मैं और आप बहुत ब्लेस हैं कि अगर खुदा ने अपने वादे हमारे साथ किए हैं तो खुदा अपने वादों को याद रखता है। मैं अपने खुदा के वादों को भूल सकता हूं, और खुदा आकर आपको ये कहते हैं, और खुदा आकर मुझे ये कहते हैं, तुझे याद है मैंने तेरे से ये वादा किया था, तुझे याद है मैंने तुझे ये कहा था। जब खुदा ने मुझे 23 कंट्रीज के लिए कहा, मैंने कहा खुदा
रिसोर्सेस कहां से आएंगे, कॉन्टेक्स्ट कहां है। मुझे तो बहुत से कंट्रीज की जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर की, और कुछ कंट्रीज की लिस्ट में मैंने प्रिपेयर की, और मैंने नोटिस किया कि जो कंट्रीज की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की, पैसिडी 10 कंट्रीज से ऊपर कंट्रीज नहीं गए जहां पर मैं पहुंच सकता था, जहां पर मेरी एक्सेस थी, फ्रेंड्स थे, रिलेशनशिप थे। और मैंने कहा खुदा ये 10 कंट्रीज से ज्यादा ऊपर कंट्रीज नहीं है। खुदा ने कहा ओके, तूने गिन ली है? मैंने कहा यस खुदा। उसने कहा ओके, एंड आई रियलाइज्ड इमीडिएटली कॉल स्टार्टेड टू कम। Pastor Lazar, we would like you to come. Brazil is one of the country जहाँ पर next month में जा रहा हूँ। पिछले साल भी वहाँ पर गया था। Countries started to call me, emails आनी शुरू हो गई। Pastor हम आपको यूरोप के इस कंट्री में चाहते हैं, हम आपको इस कंट्री में चाहते हैं। सऊदी अरेबिया वन ऑफ द कंट्री है जहाँ पर खुदा ने मुझे प्रिविलेज दिया कि मैं जा सकूँ। कि जब खुदा आपको प्रॉमिस देता है, खुदा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि खुदा अपने कलाम को पूरा कर सके। कोई रो नहीं रहा, कोई चिल्ला नहीं रहा, और खुदा खुद इंटरवीन किया खुदा ने। और खुदा ने कहा मूसा ये नहीं जानते कि मैं अपने प्रॉमिस में कितना फेथफुल खुदा हूं। मैं अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि कोई कल को मुझे ये कहे खुदा ने ये कहा था, खुदा ने तो पूरा नहीं किया। और खुदा ने कहा मूसा 430 बरस हो चुके हैं और तू जा। और मूसा वहां पर गया, और आप जानते हैं 10 डिफरेंट प्लेग्स, 10 डिफरेंट आफत आप में से सब लोग जानते हैं। और इन सारी आफतों में खुदा ने अपना जलाल मूसा को दिखाया। कैन यू इमेजिन? खुदा ने कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? खुदा मेरे हाथ में लाठी है। खुदा ने कहा मार जमीन पर, और उसने जमीन पर गिराई, और वो किस में तब्दील हो गई? सांप में। ये खुदा का जलाल नहीं तो और क्या है? और बाकियों ने कहा हम भी करेंगे, और उन्होंने किया। उस सांप ने उन सबको अपने अंदर स्वॉलो कर लिया। ये खुदा का जलाल नहीं तो और क्या था? और मूसा वॉच कर रहे खुदा के जलाल को। एंड इवेंचुअली आखिरी प्ले, आखिरी आफत आप जानते हैं, खुदा ने कहा मूसा इनको कहे अब टाइम आ गया कि मैं इनको निकालूं यहां से। लेकिन इन्होंने अपना सीड बोना है आज, और अगर ये विलिंग है, अगर ये विलिंग है कि ये अपना सीड बोने, तो फिर देख मैं मिराकलसली इनको निकालूंगा। मूसा कहता है खुदा बड़ा मुश्किल है, ये अपना सीड नहीं बो सकते क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके पास नहीं है। खुदा ये लैंड कैसे लेके आए? खुदा इनमें से बहुत से लोग हैं जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते लैंड को। खुदा ने कहा मूसा they have to do it, it's mandatory for them। और जब उन्होंने लैंड खुदा के सामने लाए और उसको उन्होंने काटा, और उसको काट कर उन्होंने सैक्रिफाइस खुदा के सामने रखी, आप जानते क्या हुआ? रिश्ता आया और उसने उनकी डोर पोस्ट को जहां पर लहू था, ब्रेड था, उसने देखा और उसने उन घरों को छोड़ दिया। Wasn't it the glory of God? क्या ये खुदा का जलाल नहीं था? मूसा वॉच कर रहा है खुदा के जलाल को। मूसा यहां से निकला है, और जब वो उस बैरे कुलजम पर पहुंचा, पर पहुंचा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो वहां पर खड़े हैं और लोग कह रहे हैं मूसा हम मर जाएंगे। और मूसा ने कहा खुदा मैं क्या करूं? उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? खुदा मेरे हाथ में लाठी है, मार पानी के ऊपर, मैं तुझे अपना जलाल दिखाने को। और उसने उस पानी के ऊपर मारा। और आप जानते हैं मेरे बहन और भाइयों, ये वो बातें हैं जो आपने बचपन से सुनी है। But I just wanna tell you one thing, इन सब में खुदा अपना जलाल छिपाए हुए था। खुदा सिंपल मैनर्स में, सिंपल चीजों के जरिए से अपने जलाल को आपकी जिंदगी पर दिखाता है। आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस आपके सामने से गुजर गई है, और आप एकदम से डिस्टर्ब हो गए कि मैं अपनी जॉब पर जाना है, और मेरी जॉब अगर मैं ना पहुंचा टाइम पर, मेरा बॉस बहुत गुस्से में आ जाएगा। एक गाड़ी पीछे से आती है और वो आकर ये कहती है वुड यू लाइक टू गेट लिफ्ट, वुड यू लाइक टू गो समवेयर? और आप कहते हैं यस, मेरी गाड़ी, मेरी बस मिस हो गई है। ये खुदा का जलाल नहीं तो और क्या है? Divine favor, divine help is one of the expression of God's glories. सुने गौर से, खुदा बार बार उसको अपना जलाल दिखा रहे हैं, और मूसा खुदा के जलाल को देख रहे हैं। लोग पानी में से गुजरे हैं और आगे गए हैं,
اور نکل گئے ہیں. پیچھے سے فرعون کی فوج آئی ہے اور آپ جانتے ہیں پانی بند ہو گئے اور ساری کی ساری فوج اندر چلی گئی اور وہ ختم ہو گئی. اور موسیٰ دیکھتا رہ گیا. موسیٰ کہا خدا نے کہا میں اپنا جلال تجھے دکھا رہا ہوں. لوگ ویلڈرنس میں ہیں, لوگ بیابان میں ہیں, اور اس بیابان کے اندر جو پہلی میٹنگ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کی ہے, خدا نے موسیٰ کو کہا موسیٰ ان سب کو, غور سے سنے میری بات, موسیٰ نے کہا ان سب کو یہ کہہ دیں کہ یہ سارے کے سارے prophets اور priest ہیں. I want all of them to be prophet and priest. All of them. خدا نے کہا ان میں سے ایک اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا خدا یہ کہہ رہا تھا موسیٰ تو انہیں لیڈ ضرور کرے گا, but they will carry the same anointing as you are carrying. They will have the same glory as much as you are having. اور لوگوں نے کہا wow, that's wonderful. ہم بھی اسی طرح سے استعمال ہوں گے. خدا نے یہ چاہا. میں آپ کو بتاؤں گا اس کی وجہ کیا تھی, کیوں خدا یہ چاہ رہا تھا. خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں موسیٰ نے پہاڑ پر بلایا. سنیں غور سے, میں آپ کو صرف پیسیجز دے رہا ہوں, آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. 20ویں باب میں خدا نے موسیٰ کو بلایا اور خدا نے کہا موسیٰ میں اسپیشل کمینڈمنٹ دینا چاہتا ہوں جس کو آپ اور میں 10 تم کہتے ہیں. اور خدا نے کہا تھینک یو سر. خدا نے کہا لے کر اپنے آپ کو اوپر. No, that was the first time when Moses went up on the mountain. That was the first time. موسیٰ پہاڑ پر گیا, خدا پہاڑ پر آیا, موسیٰ اور خدا ان کی کمیونیکیشن ہوئی اور خدا موسیٰ کو کہا موسیٰ ریسٹ ہے for 40 days. موسیٰ نے کہا خدا تجھے پتا میرا اسکیجول, میری گھڑی یہاں پر بیٹھے, میرا اسکیجول تو نے دیکھا ہے میں کتنا بیزی پاسٹر ہوں. 40 days and 40 nights. خدا اس کے ساتھ نہیں بولا اور خدا نے اس سے کہا میری حضوری میں ہے رہ یہاں پر کہ میں تیرے سے بولنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ خدا کو 40 دن اور 40 رات لگے ٹھک 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 10 حکم لکھنے کے لیے. لگتا ہے اتنا ٹائم لگا ہوگا خدا کو, تو پھر کیوں 40 دن اور 40 رات خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو میرے پاس ہی رہے. بیکاز خدا اس سے زیادہ کہ ہم اس کو سرو کریں وہ ہمارا پیار چاہتا ہے. اور موسیٰ کو خدا یہ دکھا رہا تھا موسیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ وقت گزار. I want you to learn how to spend time with me. And Moses started to learn. اور وہ اس نے ریسٹ وہاں پر کرنا شروع کر دیا خدا کی حضوری میں. اور 40 days کے بعد خدا نے اس کو 10 commandments دیے اور خدا نے 2 تختیاں اس کو دی. Now پہاڑ پر ابھی خدا نے اس کو دی ہیں. پہاڑ پہ نوٹس کریں ذرا, پہاڑ پر یہ وہ ٹائم نہیں تھا بھائی کہ جب اس کو دیے, اس کے بعد ایک ٹائم آگے آئے گا کہ جب خدا نے اس کو دیے. لیکن غور سے سنیں, شور ہوا ہے اور شور کی وجہ سے لوگوں نے موسیٰ کو کہا ہم نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم پریسٹ اینڈ پروفٹ ہوں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک اسپیشل قوم ہوں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف تو جا اور خدا تیرے ذریعے سے تیرے ساتھ بولے اور تیرے ذریعے سے ہمارے ساتھ بولے. They rejected God's divine assignment. اور خدا نے کہا موسیٰ that's okay, I have another option. خدا کے پاس تو آپشنز ہی آپشنز ہیں. خدا کے پاس تو طریقے اپنے کلام کو پھیلانے کے. ابھی میں ناصر جی کو بتا رہا تھا کہ میں جب سعودی عربیہ میں تھا, لائیو تو نہیں جا رہا ہے, تھینک یو, میں سعودی عربیہ میں تھا اور میں ایک ایرانین کپل کے ساتھ ملا. میں انگلینڈ میں تھا, پاسٹر جی وہاں 5 ایرانین کپلس کے ساتھ میں ملا. They have the same story کہ جیسس ہمارے ڈریمز میں اپیئر ہوا. ڈریمز ان دنوں میں جو 2 کنٹریز ہیں فاسٹسٹ گروئنگ کنٹریز جہاں پر جیسس بہت زیادہ خود اپیئر ہو رہے ہیں. کین یو امیجن کہ وہ اپنی دلہن کو تیار کرنے کے لیے کتنے کوئک ہیں. اس لیے پترس کو یہ ریویلیشن ملا, اس نے کہا یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خدا کے نزدیک
एक दिन 1000 बरस के बराबर और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। जैसी देर तुम लोग समझते हो वैसी देर खुदा नहीं समझता। इसलिए कि आज भी बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि खुदा देरी क्यों है। अगर उसने भेजना होता तो वो अपना बेटा भेज देता कि वो आता और आकर दुनिया को ले जाता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब तक खुदा का कलाम पूरी दुनिया तक न पहुंचे, अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में ना हो, लिखा है खुदा की कलाम में, ये उसके वचन में मत्ती की इंजील और उसके 24वें बाब में है, जब तक अंजील का पैगाम सारी दुनिया में ना चला जाए उस वक्त तक खात्मा नहीं होगा। कैसे वो आए? जब मैं नेशंस को देखता हूं और मैं नेशंस के अंदर ये सुनता हूं, क्या आपको जीसस का पता है? मेरी एक चर्च की टीम, हमारी आउटरीच होती है इवेंजलिज्म के लिए। पास्टर, एक बच्ची हमारे चर्च की एक बंदे के पास गई, तो वो सरदार भाई जी थे, तो वो खुद भी बेचारे बड़े परेशान होंगे। तो उस बच्ची ने जाकर उनको कहा, अंकल जी आप जीसस को जानते हैं? तो उसने कहा, नहीं बहन जी, मैं हाल आप ही नवा आया, कनाडा की बात। उन्होंने सोचा ये बच्ची गुआच गई है, वो बेचारा परेशान हो गया। कहता है मैं हाल आप। इतने सिंपल लोग हैं, लोगों को जीसस का पता नहीं है। तो आप ये सोचते हैं कि अगर अभी तक लोगों को जीसस का पता नहीं है तो यीशु मसीह आ जाए और वो लोग यीशु मसीह को कहें कि तूने हमें कौन सा बताया था, कौन सा बंदा था तेरा, कौन सी तेरी बंदी थी जो हमारे पास पहुंची थी। अभी मैं बांग्लादेश में था और मेरी कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू बिजनेसमैन आया, और वो जब आया, खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया। उसने अपनी, मेरे पास उसकी वीडियो है, उसने अपनी जिंदगी खुदा यीशु को दे दी। और उसके बाद उसने वो रोया और उसने मुझे कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं मतलब ऑफ कोर्स वो अपनी बांग्लादेशी जुबान में बात कर रहा था। एंड देन उसने कहा कि मैं शाम को अपनी फैमिली को लाना चाहता हूँ। एंड ही ब्रॉट हिज वाइफ एंड हिज सन। और उसके बेटे ने, मतलब वो बेटा तो बहुत छोटा था, लेकिन उसकी वाइफ ने और उन दोनों ने अपनी जिंदगी खुदा यीशु को दी। That's what is happening। और इसी बात का, और जब मैंने उनको लीड किया कि वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करें, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कह रहा था शायद इसी के लिए यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे कि वो बैठे हुए थे कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये एक शख्स भी अपनी जिंदगी खुदा उनको ना दे दे। कैसे वो आ जाए? जब तक उसका वचन सारी दुनिया के लोगों तक ना पहुंचे, ताकि वो, याद रखे, सारी दुनिया वचन को कबूल नहीं करेगी, लेकिन सारी दुनिया तक वचन का पहुंचना जरूरी है, ताकि कोई उसको ये ना कह सके कि तूने मेरे लिए कौन सा अरेंज किया था कि मैं सुन सकता। मूसा के पास लोग आए और उन्होंने आकर कहा, मूसा हम खुदा की आवाज को नहीं सुनना चाहते, हम प्रीस्ट नहीं बनना चाहते, हम प्रॉफिट्स नहीं बनना चाहते। मूसा खुदा के पास गया, खुदा ने कहा नो प्रॉब्लम, चूज 70 एल्डर्स। 70 एल्डर्स को ले, एरन को ले, एबीहू को ले जो उसका बेटा है, नेदब को ले और यशवा को ले, और पहाड़ के ऊपर। Why 70 elders? मेरी बुक है द ग्लोरी मैनिफेस्टो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मेरी बुक है जो कंप्लीट हो रही है। उसकी डिफरेंट ट्रांसलेशंस हो रही हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और बहुत जल्दी हम इसको हिंदी में भी तर्जमा कर रहे हैं, उर्दू में ऑफ कोर्स तर्जमा हम करने के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, और हम आपको इसकी कॉपी जरूर भेजेंगे। मूसा खुदा के सामने डिस्टर्ब है, और खुदा ने कहा मूसा परेशान मत हो, 70 एल्डर्स को लेकर आ। क्यों 70 एल्डर्स? क्यों 70 एल्डर्स? इसलिए कि उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो कंट्रीज थी वो 70 कंट्रीज थी, 70 कंट्रीज। तो खुदा क्या कह रहा था? That's okay, अगर ये सब के सब नहीं मान रहे तो मैं 70 एल्डर्स के ऊपर सेम एनॉइंटिंग ट्रांसफर करूंगा, जो सेम ग्लोरी तेरे ऊपर है, और ये सारे के सारे 70 लोग निकलेंगे और एक एक कंट्री में एक एक मेरा एम्बेसडर होगा, और वो जाएगा और वो जाकर उस कंट्री को टोटली तौर पर ट्रांसफॉर्म कर देगा।
Oh, hallelujah. Hallelujah. मेरी बहनों याद रखें, मेरे भाइयों, आप इस कंट्री के अंदर एजेंट्स हैं, हेवनली किंगडम के एजेंट्स हैं। आप खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं, आपको खुदा ने चुना है। जिस जियोग्राफिक लोकेशन में खुदा ने आपको रखा है, सुने गौर से, जिस जियोग्राफिक लोकेशन में आपको खुदा ने रखा है, खुदा आपकी हदूद को जरूर बढ़ाएगा। जेबेस वन ऑफ द कैरेक्टर बाइबल को जिसमें है यबूस, और उसने खुदा हमको कहा, अरे खुदा मेरी हदूद को बढ़ा, enlarge my territory, और खुदा ने उसकी बात को सुना। खुदा आपकी हदूद को बढ़ाएगा, खुदा आपके एरिया को इंक्रीज करेगा, लेकिन खुदा आपको देखना चाहता है कि आप खुदा के लिए जिस जियोग्राफिक लोकेशन पर खुदा ने आपको रखा है, आप वहां पर खुदा के लिए और अपने अंदर से खुदा के जलाल को एविडेंट करवा रहे हैं लोगों को। मत ये सोचे कि आप सिर्फ अपनी जॉब के लिए यहां पर आए हैं। नो, ये आप सोच कर आए थे। That's what you thought when you were leaving your country. Whether you were leaving Nepal, I was in Nepal last year. Whether you were leaving Nepal or you were leaving India or you were leaving Pakistan. आप ये सोच रहे थे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, खुदा आपको लेकर जा रहा था, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाजों के कदमों को खुदा लीड करता है। The steps of the righteous are led by the Lord. खुदा है जो आपको लीड करता है, और खुदा है जो आपको लेकर जाता है। वो है जो आपके लिए दरवाजे खोलता है। जिस जगह पर इवन आप जॉब कर रहे हैं, जितनी देर के लिए खुदा ने आपको वहां पर रखना है, खुदा आपको वहां पर रखेगा, और उसके बाद खुदा आपको निकाल लेगा, और खुदा आपके लिए एक बेटर जगह प्रिपेयर की हुई है जहां पर आपको लेकर जाएगा। और जब आप वहां पर जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि कुछ देर के लिए आप वहां पर हैं, और उसके बाद खुदा ऑटोमेटिकली आपके लिए अरेंज करेगा कि आप उस जगह को छोड़ दें और आप किसी और जगह पर चले जाएं। लेकिन अगर आप रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है, खुदा के साथ रिलेशनशिप में स्ट्रांग नहीं है, डिसर्न नहीं कर सकते खुदा की आवाज को, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल गेट डिस्करेज्ड। हाउ पास्टर जी, मेरे लिए तो मेरी जॉब खत्म हो गई है। आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। आसमान के परिंदों को देखो, ना वो बोलते हैं ना वो करते हैं, लेकिन तो भी लश्करों का खुदाम आपका और मेरा यहोवा खुदाम उनके लिए खुराक बहाम पहुंचाता है। आप उन परिंदों से फार मोर ग्रेटर हैं, इसलिए कि आप उसके इमेज पर क्रिएट हुए हैं। तो फिर वो आपको कैसे भूल सकता है? अभी हम गीत गा रहे थे, 2 गीत मेरे बड़े फेवरेट गीत आपने गाए हैं। एक गीत जो आपने गाया है वो मुझे बहुत पीछे ले गया, तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। मुझे याद है पास्टर हिस्किल स्ट्रोश ने, जिन्होंने ये गीत लिखा, स्वीडन में वो एक ट्रेन में बैठे थे, फर्स्ट गीत था, वो रोकर दुआ कर रहे थे और खुदा को कह रहे थे, खुदा मुझे गीत दे मेरी नेशन के लिए। और म्यूजिक बज रहा था, ना 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 ना, ये ट्रेन के अंदर म्यूजिक बज रहा था, और एकदम से उस ट्रेन के अंदर खुदा ने कहा चल फिर लिख। फर्स्ट गीत जो पास्टर हिस्किल स्ट्रोश ने लिखा वो ये गीत था, तेरा प्यार है बड़ा। और मैंने इस गीत पर बदरूहों को निकलते हुए जिंदगी को छोड़ दिया। हालेलुया। और दूसरा गीत अभी जो आप गा रहे थे वो भी मेरा फेवरेट गीत है, लेकिन हम उसको जरा फर्क तरह से गाते हैं। मेरा जो वर्शिप लीडर है वो इंडियन है, तो वो पंजाबी है, तो वो इसको बड़े और लिरिक्स उसके और है। एक माँ की, वो गाता है एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। कॉम्पोजिशन बिल्कुल वही है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, यीशु शांति देता है। अगर एक माँ अपने बच्चों को भूल नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है कि आपकी जॉब खत्म हो जाए और वो आपको भूल जाए जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं? आप एक वक्त में ये कहते हैं, खुदाम तेरा शुक्र हो कि तू मुझे लेकर जा रहा है, और खुदाम कहता है जब तक तू वहां पर होगा मैं तेरी हिफाजत करूंगा और मैं तेरे लिए रिसोर्सेस के दरवाजे खोलता जाऊंगा। और आप कहते हैं आमीन, और उसके बाद जॉब खत्म होती है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी मत हो मेरे भाइयों, कभी मत हो। मैं ये जानता हूँ कि हमने अपने मुल्कों को छोड़ा है, अपने कंट्रीज को छोड़ा है, हमारी फैमिलीज पीछे हैं, बहुत से लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये जानता हूँ 10 years पहले पास्टर जी खुदा मुझे दुबई लेकर आया था, 10 years पहले मिनिस्ट्री के लिए, और उसके बाद कुछ देर के लिए मैं दूसरे कंट्रीज में जाना शुरू हो गया, देन आई स्टॉप कमिंग इन दुबई। लेकिन अब खुदा ने दोबारा से मुझे यहाँ पर भेजा है।
कि I have to start my ministry in Dubai as well. चर्च नहीं स्टार्ट कर रहा मैं सिर्फ ऐसे ही खुदा के खादमों के साथ मिलकर खुदा उनकी खिदमत करूंगा। खुदा आपकी केयर करता है, खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा तो उनकी फिक्र करना चाहता था और खुदा सिर्फ एक बंदे को लेकर जा रहा था और खुदा उन्हें कह रहा था कि तुम जाओगे और तुम जाकर वहां पर मुझे सर्व करोगे। And they were going everywhere. खुदा उनको तैयार कर रहा था, लेकिन उस मसा के बाद यानी उस anointing के बाद जो खुदा का मूसा के ऊपर था और वो ट्रांसफर खुदा ने खुद किया, बाइबल मुक़द्दस में है, और उसके बाद मूसा को खुदा ने पहाड़ के ऊपर दोबारा से बुलाया और ये वो टाइम था जब खुदा ने उसको 10 अहकाम दिए और मूसा नीचे गया और आप जानते हैं कि जब उसने वहां पर नीचे शोर सुना कि लोग वहां पर टोटली तौर पर उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, मूसा डिस्करेज हुआ, अपसेट हुआ और मूसा ने उन्हीं तख्तियों को लिया और उसने जमीन पर फेंका और उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, एक ही दिन में 3000 लोग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। और मैं मेरी बुक में ये डिटेल लिखी हुई है कि ये वो ग्रुप था खास तौर पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जो लोगों को लीड कर रहा था इस बात और खुदा वॉच कर रहा था, खुदा एक्टिविटीज को वॉच कर रहा था और खुदा ने उन्हें टोटली तौर पर खत्म कर दिया। खुदा के काम को कोई खत्म नहीं कर सकता। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपना फोकस इस तरफ लेकर जा सकूं। अगर खुदा ने बिल्ड किया चर्च को, अगर खुदा ने बिल्ड किया अपनी कलीसिया को, तो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। And I've seen लोगों को देखा है कि लोग खत्म हो गए हैं लेकिन खुदा का काम चलता रहा है, खुदा का घर चलता रहा है, खुदा नए लोगों को लाता रहा है। और जब भी थोड़े से लोग छोड़कर जाते हैं, हम पास्टर्स, मैं उसमें शामिल हूँ क्योंकि मैं पास्टर हूँ, खुदा ने मुझे प्रिविलेज दिया कि मैं चर्चेस को बिल्ड कर सकूं। हम डिस्करेज हो जाते हैं, जितने जाते हैं उससे बढ़कर खुदा ले आता है। क्यों पास्टर? और मूसा अपसेट हुआ इसलिए कि लोग चले गए, लोग मर गए, लेकिन उसके बाद मूसा अपने अंदर डिस्करेज हुआ कि शायद खुदा ने मुझे भी छोड़ दिया, इसलिए कि बहुत बुरा काम लोगों ने किया और मूसा अपने अंदर इस खौफ के अंदर है। और अगर आप एक्सोडस 33 खरूज की किताब और उसके 33वें बाब को घर में जाकर पढ़ें, आप नोटिस करेंगे कि मूसा इवन ऐसे लगता है, मतलब जो वहां पर सारा कुछ लिखा है, मैं उसको अपने माइंड में फ्रेम कर रहा हूं कि मूसा इवन खुदा से नजरें भी नहीं मिला रहा, कि वो ये सोचता है कि खुदा क्या सोचता होगा, खुदा मेरे बारे में क्या सोचता होगा, शायद मैंने ठीक तौर से मिनिस्ट्री नहीं की, शायद मैंने इन्हें मैच्योर नहीं किया। और खुदा उसके पास आया और खुदा ने उसको कहा, मूसा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुझे बनाम जानता हूं, आई नो यू बाय नेम। आप मुबारक है, खुदा आपको बाय नेम जानता है, इसलिए कि उसने आपको अपने हाथ के इसलिए वो आपकी फिक्र करता है। इमेजिन करें जब आप मौत के साया की वादी में से गुजर रहे होते हैं, वो आपको वॉच कर रहा होता है। आजकल तो इस चीज को इवन अंडरस्टैंड करना मुश्किल ही नहीं है। मेरे चर्च में एक फैमिली है, उन्होंने पाकिस्तान में घर लिया और वो इंडिया में उन्होंने घर लिया और उन्होंने कहा, पास्टर जी हम वहां पर गए हैं, हमने वहां पर कैमरे लगा दिए, ये देखें हमारे घर को, ये देखें कोई सफा नहीं रहा। मैंने कहा वाह, आप इसके ऊपर कहीं भी दुनिया में बैठकर वॉच कर सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके घर में। अगर आपके पास इतनी समझ है, मेरे पास तो इतनी समझ नहीं है, अगर आपको इतनी समझ है, खुदा को समझ नहीं है कि वो आसमान पर बैठकर आपको वॉच कर सके। इसलिए खुदा के कलाम में ज़बूर 139 में लिखा है कि वो मेरा उठना बैठना जानता है। और अगर वो आपका उठना बैठना जानता है तो क्या हो नहीं सकता कि वो आपकी किसी भी बात को, जो पेन की सूरत में हो, प्रॉब्लम की सूरत में हो, डिस्करेजमेंट की सूरत में हो, वो उसको उसी तरह से रहने दे। ओह हालेलुया। खुदा कभी आपको छोड़ेगा नहीं, खुदा कभी आपको छोड़ नहीं सकता। इसलिए सुने, 2 वजह खुदा आपको छोड़ नहीं सकता। नंबर 1, उसने आपको अपने इमेज पर क्रिएट किया।
आप जमीन पर खुदा का इमेज हैं, ये बाइबल को दिस कहती है। नंबर 2, उसने आपको अपने बेटे के बेशकीमत खून से खरीदा है, आप खरीदे गए हैं। आप, इसलिए पौल कहता है तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम मत बनो। और वो इवन आदमियों के गुलाम जब कहते हैं तो एक्चुअल ओरिजिनल जो लैंग्वेज है उसमें यह है कि किसी भी फोर्स के स्लेव न बनो जिसमें इविल फोर्सेस भी। वाओ। और मूसा को जब खुदा ने ये कहा मैं तुझे बेनाम जानता, आई नो यू बाय नेम, तू क्यों परेशान है? उसने खुदा रियली तू मुझे जानता? आप पढ़ सकते हैं इसको Exodus chapter 33 में। और तब मूसा खुदा को ये कहता है ओके, इफ यू नो मी बाय नेम, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी। नाउ मैं जल्दी से क्विकली आपको खास तौर पर दो, मेरे बुक में ज्यादा डिटेल है लेकिन मैं दो खास तौर पर जो ग्लोरी के ताल्लुक से वर्ड्स हैं वो आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, शिकायना ग्लोरी। आपने सुना कुछ लोग वर्ड शिकायना? दैट्स द विजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। शिकायना ग्लोरी, शिकायना ग्लोरी वो ग्लोरी है जिसमें खुदा अपने लोगों को, इज़राइल को सुबह के वक्त बादलों की ओट में उनके साथ चलता था। दैट वाज शिकायना ग्लोरी। खुदा ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करता था जिस एनवायरनमेंट में, लास्ट ईयर मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई में था और हम डिफरेंट जगहों को विजिट कर रहे थे। पास एक बड़ी हैरान कुन बात मैंने सुनी, आई वाज रियली शॉक्ड, इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। आपके लिए, आप तो रहते यहाँ पर है, आप तो ये सारी बातें सुनते होंगे। दुबई वन ऑफ द कंट्री है दुनिया में जो इतना ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ कि सारी जो दुनिया की टूरिज्म है वो उसके पास आ जाए। एक जो बहुत बड़ी हिंड्रेंस यहां पर है वो टेम्परेचर है। और दुबई ने ये कोशिश की है कि वो मसनूई तरीके से बादल बनाकर क्लाउड्स के जरिए से वो टेम्परेचर को अपनी मर्जी के साथ मेंटेन कर सके। मीनिंग ऐसा टेम्परेचर होगा। और लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर थे, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटियां, तो हमने इस बात को देखा, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहां पर हम गए हमने देखा कि वहां पर क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, मतलब बहुत कम उस वक्त में हमने सनलाइट को देखा। एंड देन वी हर्ड कि ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि इस तौर से मौसम को कंट्रोल किया जा रहा है अपने पर्पस के। और खुदा इज़राइल के लिए खुद टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है अपनी प्रेजेंस के जरिए से। कि जब तुम वॉक कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त उनके पास फरारी नहीं थी, उस वक्त तो रेंज रोवर नहीं थी, राइट? उस वक्त उनके पास बेस्ट गाड़ियां नहीं थी, तो दे वर ऑल वॉकिंग काफिलों की सूरत में। और अगर कोई बहुत बुजुर्ग होते थे या अगर औरतें होती थी, स्पेशली जो प्रेग्नेंट औरतें होती थी, वो गधों के ऊपर उनको बिठा दिया जाता था ताकि वो उनके जरिए से वो ट्रैवल कर सके। लेकिन मेजॉरिटी लोग, तो इमेजिन करें अगर आप बाहर निकले थोड़ी देर के लिए और वॉक करना शुरू कर, भाई बाहर से आए थे तो वो सारे स्वेट थे मेरी तरह, जैसे मैं अभी पसीने में भीगा हूँ और वो पसीने में भीगे हुए थे। और पास्टर जी जल्दी से गए और उन्होंने जाकर पानी की बोतलें भाई के सामने रखी। तो आप इमेजिन करें, मुझे नहीं पता कि वो कितनी लंबी वॉक करके यहाँ पर आए, पर आप इमेजिन करें कि इस मौसम में भी वॉक करना कितना मुश्किल है आउटसाइड। तो बनी इस्राएल ऐसे एनवायरनमेंट में घंटों घंटे वॉक कर रहे थे और बादल ऐसे थे कि मौसम इतना खूबसूरत था, आइडियल मौसम था कि खुदा उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था कि जिसमें वो स्वेट ना करें मेरी तरह, वो पसीना उनका ना निकले, और वो वॉक करें और वो वॉक करें और खुदा ऐसी हवाएं चला रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं। That was Shekinah glory। रात को खुदा कहता है तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि जर्नी कितनी थी? 11 डेज की। ये तो उन्होंने 40 बरस की जर्नी बना दी थी। 11 डेज की जर्नी को खुदा कह रहा था चलो 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 क्विक चलो। क्या खुदा इस बात को डिजायर किया था? आपने कभी नोटिस किया है कितने पेरेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे? कितने पेरेंट्स?
कितने माँ बाप हैं? ओके ओके वंडरफुल। आपने कभी नोटिस किया कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट ले तो आपके बच्चों से पहले आपके अंदर बेसब्री होती है कि जल्दी से मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को ये दिखा सकूं। Thank you, Jesus. Hallelujah. That was God did. खुदा ये चाहता था। खुदा ने कहा सिर्फ 11 days, जल्दी चलो क्योंकि खुदा एक्साइटेड था कि खुदा उन्हें प्रॉमिस्ड लैंड दिखा सके। और खुदा इसीलिए उनके साथ साथ चल रहा था शिकायना ग्लोरी में, सुबह के वक्त बादलों की ओट में, रात के वक्त फायर में। आग खुदा ऐसी क्रिएट कर रहा था कि वो आग उनको हीट भी पहुंचा रही थी जो कि सूटेबल हीट थी कि जिसकी वजह से वो वार्म फील करे, क्योंकि वो तो विल्डरनेस के अंदर थे। और आप अगर स्पेशली मुझे अब तो नहीं मुझे पता इस एनवायरनमेंट का, लेकिन अगर आप कभी जंगल में जाएं या डेजर्ट में जाएं रात को तो मौसम बड़ा ठंडा हो जाता है। और खुदा उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट रात को क्रिएट कर रहा था कि जिस एनवायरनमेंट में उन्हें सर्दी भी ना लगे और वो चलते हुए थके भी ना। ये थी शिकायना ग्लोरी। मूसा ने ये देख। नंबर 2, जो दूसरा वर्ड बाइबल को जिसमें ग्लोरी के लिए इस्तेमाल हुआ, ओके खुदा कह रहा है कि नहीं मैं आगे चलूं। 3 वर्ड्स है, जब भी खुदा ने दोबारा मुझे परमिट किया मैं आपको ये दे सकूं, तीनों वर्ड्स मैं आपको दे सकूं, मैं आपको दूंगा, लेकिन खुदा ये चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूं। खुदा ने मूसा को कहा मूसा आई नो यू बाय नेम, और खुदा को मूसा ने कहा लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, मुझे अपना जलाल दिखा। खुदा ने कहा I will show you my presence, सुने गौर से, मैं आगे उसका कर रहा हूं, सुने गौर से। I will show you my presence, I will show you my power, and I will show you my provision. Hallelujah. ये खरूज की किताब और उसके 33वें बाब में लिखा है। आप अगर इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे, आपको नजर आएगा I will show you my presence, I will show you my power, and I will show you my provision or my goodness. उर्दू की बाइबल में लिखा है मैं अपनी भलाई तुझे दिखाऊंगा, मैं अपनी रूह तेरे साथ रखूंगा। Okay? I will show you my presence, I will show you my power, and I will show you my provision. One of the expression of glory जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है खुदा की provision. Hallelujah. खुदा ने मूसा को कहा I will. मूसा ने कहा Lord show me your glory. खुदा ने कहा I will. मांगे खुदा से, और खुदा आपको कभी रिफ्यूज नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मांगते नहीं हैं खुदा से, और अगर हम मांग भी लें तो कभी कभी हम बहुत बुरी नीयत से मांगते हैं, तो इसलिए कभी कभी ये हिंड्रेंस बन जाती है। 7 hindrances बाइबल को जिसमें लिखे जो हम तक खुदा की ब्लेसिंग्स को आने में रोकते हैं। 7 hindrances। एक जो हिंड्रेंस है वो ये है कि हम मांगते नहीं हैं। तो खुदा ने उसको कहा ओके आई विल शो यू माय प्रेजेंस, मैं अपनी प्रेजेंस को तेरे साथ रखूंगा। आई विल शो यू माय पावर, मेरी कुव्वत तेरे साथ होगी। एंड देन आई विल शो यू माय प्रोविजन। मूसा सेटिस्फाइड हुआ? नो। खुदा को पता चल गया कि मूसा सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए कि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। उसको मालूम है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उसको मालूम है कि जो कुछ उसने आपको कहा है आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। खुदा दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। तू मुझे पावर अपनी दिखाना चाह रहा है, मैं तेरी पावर ही तो इतनी देर से देखता रहूं। तू मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है, ये तेरी प्रेजेंस ही है जो हमें वहां से निकाल कर लाई है। कैसे मैं कहूं कि मैंने तेरी प्रेजेंस को नहीं देखा, कैसे मैं कहूं मैंने तेरी पावर को नहीं देखा, कैसे मैं कहूं कि मैंने तेरी प्रोविजन को नहीं देखा, क्योंकि तूने तो ये तक कर दिया कि तूने आसमान को खोलकर वहां से बेटेर हमारे लिए भेज दिए कि हम वहां का बारबेक्यू खा सके, हेवनली बारबेक्यू। वाह। तो मुझे ये ना कहे खुदा कि मैं तुझे अपनी प्रोविजन दिखाऊं। और खुदा को पता चल गया कि मूसा क्या कह रहा है। खुदा को मूसा ये कह रहा था खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं, और खुदा ने कहा मूसा कोई मुझे देख नहीं सकता। इवन अगर तू मुझे देख मिले तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। Nobody can see me. That's fine. मर जाओ तो मर जाओ, but I'm going to see you. खुदा उसको मरने देना चाहता था? Not at all.
क्योंकि अभी खुदा ने उससे काम लेना बाकी था। मैं एक जगह पर प्रीच कर रहा था, एक शख्स वहां पर बैठा हुआ था और मैंने उसको कहा, खुदा ने वर्ड ऑफ नॉलेज मुझे दिया और खुदा ने उसको कहा इसको उठा, इसको उठा। और मैंने उसको उठाया, मैंने कहा भाई जी आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा do you know that you were very sick? In the hospital the doctor said that you will not live anymore. उसने मेरी तरफ देखा, उसने रोना शुरू कर दिया। The entire church knew that. सारा चर्च ये जानता था, सारा चर्च शॉक हो गया। मैंने कहा खुदा ने तुझे मरने नहीं दिया, बिकॉज उस बेड पर खुदा आपके साथ बोला और खुदा ने उस शख्स को कहा, उसने कहा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा बिकॉज तेरा काम अभी जो मैंने तुझसे लेना है अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक आप खुदा का काम कंप्लीट असाइनमेंट नहीं करेंगे खुदा आपको जाने नहीं देगा। लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इवन आप रात को सोएंगे, सुबह आप उठेंगे भी नहीं। वन ऑफ द मेरा डियर पास्टर फ्रेंड, मेरा मेंटर भी आप कह लें, दुनिया में खुदा उसको बड़ा इस्तेमाल किया, दुनिया के 45 कंट्रीज में। पिछले दिनों में फ्रांस में खुदा की खिदमत कर रहा था। रात 3 बजे के करीब मेरी सेक्रेटरी ने she texted me. She said, Pastor Uncle, Jerry Saville has gone. मेरा फर्स्ट रिएक्शन, मैं उठ के बैठ गया, मैंने मैसेज सुना, मैं उठ के बैठ गया। He was my mentor. I had the privilege कि मैं उसके साथ बैठ सकूं, खाना खा सकूं, prophetic word उसने मेरे ऊपर रिलीज किए। Wonderful man of God. खुदा ने कुदरत के साथ उसको इस्तेमाल किया। और कल मैं उसकी सर्विस को देख रहा था, ऑफिशियल जो उसकी लास्ट सर्विस थी, और उसमें जो 3 लोग मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, they were always with him, they traveled with him, they were like sons to him, like you are my son. और वो 3 लड़के जो 3 बंदे थे, सुबह उठे, वो उसके कमरे में गए, उसको कमरे को नॉक किया और वो नॉक करते रहे और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने रूम सर्विस बुलाई, उन्होंने दरवाजा खोला, जेरी वाज गॉन। फर्स्ट रिएक्शन जो जब मैंने फ्रांस में जब मैं इस खबर को सुना, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा खुदा जेरी क्यों चला गया? खुदा ने कहा his assignment got finished. His assignment got finished. जब तक आपका असाइनमेंट है, याद रखें, खुदा आपको जिंदगी देता चला जाएगा और दाऊद की तरह आप कहते चले जाएंगे, हाँ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और वो यकीनन आपके प्याले को रिप्लेस करता चला जाएगा, हीलिंग के प्याले को, शिफा के प्याले को, सेहतमंदी के प्याले को वो बढ़ाता चला जाएगा और खुदा आपको सेहत पर सेहत देता चला जाएगा अगर आप उसके एजेंडे में रहे। अगर आप उसके काम के नहीं है तो वो आपको आपके हाथ में छोड़ देगा और जितनी आपकी जिंदगी आप गुजार कर दुनिया से चले जाएंगे। आप खुदा के एजेंडे में हैं, 2 काम होंगे, आप असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे और असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद, सुने गौर से, बहुत से लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। बहुत से लोग ये कहते हैं he passed away, मैं कहता हूं he arrived। जब आपका जहाज लैंड करता है वो कहते हैं you have arrived at your destination। Oh, hallelujah, thank you Jesus। दूसरा काम ये होता है कि खुदा आपका वेलकम करता है कि आप वहां पर पहुंच गए हैं और वो आपको ये कहता है son welcome in your eternal destiny, उस जगह के लिए जिसमें तुझे मैंने बुलाया कि तू आ सके। वेरी क्विकली सुनिए गौर से, वेरी क्विकली, खुदा आपको लाया है, खुदा आपको बचाएगा, खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपको डिफरेंट किस्म के अटैक से महफूज रखेगा। यंग बच्चों स्पेशली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कल मैं अपनी 2 स्पिरिचुअल डॉटर्स के साथ था, वो दुबई में आए, रो के उन्होंने मुझे कहा पास्टर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हालात हैं उन हालात का मतलब यह है कि आप किसी भी वक्त इब्लीस के हाथों में जा सकते हैं। ऐसी अट्रैक्शंस, ऐसी चीजें, ऐसे इंसेंटिव्स किसी वक्त भी। मैंने कहा मेरे लिए कोई नई बात नहीं हुई।
मैं बहुत यंग था, 2024 हो गया, तो मैं 1998 में पाकिस्तान को छोड़ा था। उस वक्त मैं काफ़ी यंग था, तो मैं यंग नहीं हूँ लेकिन उस वक्त मैं भी कभी यंग था, राइट? ओके, तो उस वक्त मैं आपकी तरह बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल आपकी तरह स्किनी, और मैं वॉक बहुत करता था। तो जब मैं वहां पर गया, फर्स्ट चीज जो मैं वहां पर करता था, शाम 4 बजे मैं अपने बाइबल कॉलेज को छोड़ता था, हमारी क्लासेस फिनिश होती थी, वॉकमैन मुझे किसी ने दे दिया था वहां पर, मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, और मैं वो लगाता और वर्शिप लगाता, और टोरंटो की रोड्स के ऊपर 4-4 घंटे में वॉक करता, 4 घंटे जाना और 4 घंटे वापस आना, 4-4 घंटे में रात 10 बजे वापस, 4 बजे शाम को शुरू करता, रात 10 बजे कभी 11 बजे, सिर्फ रोते हुए खुदा को ये कहता था, खुदा मुझे अपने एजेंडे से बाहर नहीं निकलने देना, बिकॉज आई वाज यंग। तो इसलिए अगर आप मुझे ये कहें यहाँ पर पास्टर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, नई बात नहीं है मेरे लिए, नई बात नहीं है, लेकिन खुदा ने आपको प्रोटेक्ट किए, खुदा ने आपको सिक्योर किए, और आज के दिन तक खुदा ने आपको सिक्योर रखा है, और खुदा ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। इसका मतलब यह है कि खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है, और खुदा आपको छोड़ेगा भी नहीं, वो आपके साथ है और वो आपके साथ रहेगा, इसलिए कि आप एजेंट्स ऑफ ग्लोरी हैं। खुदा ने अपना जलाल आपके ऊपर रखा है। और मैं थोड़ी देर के बाद आप सबको ब्लेस करना चाहता हूँ, रिलीज करना चाहता हूँ उस अनॉइंटिंग को जो खुदा ने मुझे दी है, स्पेशली स्पेसिफिक असाइनमेंट के साथ, कि मैं ग्लोरी को रिलीज कर सकूँ, कि आप खुदा के जलाल में, खुदा के जलाल को डिजायर कर सके और उसमें इस्तेमाल हो सके। मूसा ने खुदा को कहा, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदा ने कहा मूसा नहीं हो सकता। मूसा चुप हो गया, खुदा को पता था, मूसा सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपको पता है कभी कभी बच्चों का, बच्चे चुप हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। मेरी बड़ी बेटी बिल्कुल ऐसे है, वो आर्ग्यूमेंट करती है, कुछ देर के बाद हार्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं, खुला के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चलो जी उसके बाद हमारी लड़ाई होती है और सारा कुछ खत्म हो जाता है। वह मेरी छोटी बेटी, वो कभी लड़ाई नहीं करती, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है, और मुझे पता चल जाता है, और मैं उसकी माँ को कहता हूँ ओ ये नहीं मानूंगी, मुझे पता चल जाता है, और मैं कहता हूँ आई हैव नो चॉइस बट टू डू इट। खुदा को पता चल गया कि मूसा चुप हो गया, लेकिन मूसा सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब खुदा ने कहा फाइन मोसेस, 34वें बाब में, एक्सोडस चैप्टर 34 में खुदा ने उसको कहा मूसा पहाड़ के ऊपर आ, पहाड़ के ऊपर आ। और खुदा ने 2 चीजें कही, खुदा ने कहा कम अप ऑन द माउंटेन, सेकंड बात वहां पर लिखिए, खुदा ने कहा 2 तख्तियों के साथ दोबारा आ। पहली दफा खुदा ने खुद उसको तख्तियां दी। सुने गौर से, मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन सुने बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। खुदा ने कहा पहाड़ के ऊपर, और मूसा ने तख्तियां जल्दी से उठाई और मूसा पहाड़ के ऊपर चला गया। और जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया, मूसा ने वहां पर, अब वो जल्दी में नहीं है, 2 काम मूसा ने किए, अब वो जल्दी में नहीं है। मूसा ने वहां पर जाकर, सुने गौर से, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल को जिसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको एनविजन कर रहा हूं मैं अपने अंदर। मूसा जल्दी में नहीं है, मूसा ने वहां पर जाकर अपनी चादर को बिछाया और मूसा ने खुदा की हुजूरी में रेस्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, खुदा नहीं बोला, दूसरा दिन गुजरा, खुदा नहीं बोला, तीसरा दिन गुजरा, खुदा नहीं बोला, मुसलसल वो वहां पर है और वो रेस्ट कर रहा है खुदा की हुजूरी में, क्योंकि वो इस पैटर्न को जानते कि लास्ट टाइम जब मैं 40 दिन के लिए आया था, मैं जल्दी में था और खुदा बोला नहीं था, और अब तो मैंने खुदा को कहा कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। और मूसा पहाड़ के ऊपर है, और मूसा रेस्ट कर रहा है, और मूसा रेस्ट कर रहा है, और मूसा वहां पर है, और मूसा वहां पर है, और खुदा उसको ऊपर से देख रहा है, और खुदा उसको ऊपर से देख रहा है। हारूश की किताब और उसके 34वें बाब की 12वीं आयत में लिखा, सुने गौर से, इन 40 दिनों में और 40 रात ना उसने कुछ खाया, ना उसने कुछ, ना उसने कुछ खाया। डॉक्टर्स ये कहते हैं, नर्सेस भी ये कहती हैं, हो सकता है शायद आपकी रिसर्च को डिफरेंट हो, लेकिन जो मैंने सुना 72 आवर्स नॉन स्टॉप अगर आप पानी के बगैर रहें, तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, और आप डेथ के फेंट होने के करीब पहुंच जाते हैं 72 आवर्स के बाद।
بھوک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کھانے کے بغیر رہیں تو آپ سروائیو کر جاتے ہیں 18 سے 20 دن بھی آپ رہ سکتے ہیں اگر آپ کو پانی ملتا رہے لیکوڈ ملتا رہے کیونکہ لیکوڈ آپ کی باڈی 80% لیکوڈ ہے اس کو لیکوڈ ملنا بہت زیادہ ضروری ہے پانی کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں موسیٰ پہاڑ کے اوپر ہے اور نہ اسے کھانا مل رہا ہے نہ وہ کھانا کھا رہا ہے نہ وہ پانی پی رہا ہے تو پھر اس کے اندر اسٹرینتھ کہاں سے آ رہی ہے اس لیے کہ وہ انوائرمنٹ جو خدا نے وہاں پر سیٹ کر دیا تھا even though that he was not there but his presence was there Amen. Thank you, Lord. his invisible presence was there invisible presence اور اس invisible presence کے اندر میری بہنوں میرے بھائیوں موسیٰ خدا کے ساتھ وہاں پر ریسٹ کر رہا ہے خدا کی presence and eventually ٹائم گزرا اور ایک دن اس نے شور سنا اور آپ جانتے ہیں یہ کیسا شور ہوتا ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ خدا آیا اور خدا آیا اور جب خدا بھیجی آپ آ سکتے ذرا ایک منٹ کے لیے پلیز تھینک یو تالیاں بجائے ذرا بھار تھینک یو یہ بھائی ایگزامپل ہے موسیٰ ہے اور خدا پہاڑ پر آیا اور موسیٰ کو فیل ہو گیا کہ خدا وہاں پر آیا موسیٰ کو فیل ہو اور خدا پہاڑ پر آیا اور خدا نے موسیٰ کو آلریڈی کہا تھا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تو ایک ایسی جگہ پر جانا جہاں پر تو چھپنا اور دیکھ جب تو وہاں پر ہوگا میں آؤں گا اور تو میرا پیچھا دیکھ لے گا لیکن تو مجھے دیکھ نہیں سکتا I will pass by you میں تیرے پاس سے گزروں گا لیکن تو میری بیک کو دیکھ سکے گا جب خدا وہاں پر آیا خدا ایسے اس کے پاس سے گزرا اور خدا ایسے اس کے پاس سے گزرا and he felt the back of the Lord اور خدا نے اپنی بیک اس کے ساتھ رب کی اور خدا نے اپنے آپ کو اس کے اوپر سے ایسے گزارا اور جو ہی خدا نے اپنے آپ کو اس کے اوپر سے گزارا خدا کا جلال پورے کا پورا خدا کا جلال پورے کا پورا موسیٰ کے فیس کے اوپر چلا گیا اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں موسیٰ کے چہرے کے اوپر خدا کا جلال تھا اور ایک دن میں دعا کر رہا تھا اور میں نے کہا خدا کیا موسیٰ کے چہرے کے اوپر تیرا جلال تھا خدا نے کہا نہیں صرف اس کے چہرے کے اوپر میرا جلال نہیں تھا اس لیے کہ جب میں وہاں سے گزرا تھا تو میں نے پوری طور پر اپنے آپ کو اس کے ساتھ ٹچ کیا تھا کہ اس کے پورے جسم کے اوپر میری گلوری تھی صرف سمپل وجہ یہ تھی کہ لوگ موسیٰ کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے کہ جس کے اوپر خدا کا جلال تھا اور لوگ اس کے چہرے کی وجہ سے یہ کہتے تھے موسیٰ کے سنیں اور سے میں ختم کر رہا ہوں موسیٰ کے پورے جسم کے اوپر خدا کا جلال تھا اور موسیٰ نے خدا کے جو ہی خدا وہاں سے نکلا بائبل مقدس میں لکھا ہے آپ گھر جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں خدا نے موسیٰ کو پرمٹ کیا کہ موسیٰ نے 10 commandments جو 2 تختیاں تھیں ان کے اوپر لکھا بائبل مقدس میں یہ حروج کی کتاب اس کی 34ویں باب میں کلیئر ہے اگر آپ انگلش کی بات کریں 3 ڈفرنٹ ٹرانسلیشنز میں میں نے ایک ایون جو جوش اسکالر ہے اپنی بک کی انفارمیشن کے لیے میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا بیٹھ کر اس نے ایگری کیا کہ یس ہی واز موسیس ہو روٹ the 10 commandments موسیٰ نے کیوں لکھا اس نے غور سے سیکنڈ ٹائم جب موسیٰ نے 10 احکام کو لکھا کیوں خدا نے نہیں لکھا پہلی دفعہ خدا نے لکھا تھا دوسری دفعہ خدا نے کیوں نہیں لکھا اس لیے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا موسیٰ میں نے اپنا جلال تجھ میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور جو ایبیلٹی جو پوٹینشل میری ہے وہ اب تیرے اندر ہے آپ کو یاد ہے جب خدا نے آدم کو کریٹ کیا
और आदम को खुदा ने क्रिएट करने के बाद जो पहला टेस्ट उससे लिया, खुदा ने कहा आदम मैं ये चाहता हूं कि तू सब जानवरों के नाम रख। क्यों खुदा ने उसको कहा सब जानवरों के नाम रखने के लिए? क्यों खुदा ने? इसलिए कि जब खुदा ये देखना चाहता था कि मेरा जलाल जो आदम के अंदर है क्या वो काम कर रहा है। और जब आदम ने उन जानवरों के नाम रखे, बाद में उसने लिखा जो नाम उसने रखे वही नाम उनके ठहरे, और खुदा ने कहा दिस इज गुड। इसका मतलब है खुदा ये कह रहा था ओ ग्लोरी इज वर्किंग। खुदा ने मूसा को कहा मूसा now you have the same ability, you have the same potential, you have the same power, now you will write the 10 commandments। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जब खुदा का जलाल आपके ऊपर आएगा, जो काम आप पहले नहीं कर सकते वो आप करना शुरू कर देंगे। आप बस स्टॉप पर खड़े होंगे, आपके अंदर खुदा की तरफ से जुर्रत आएगी भाई कि आप किसी को कह सके मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, और वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, और वो अपने हाथ आगे करेगा और वो कहेगा मैं मुसलमान हूं, हाँ, मैं हिंदू हूं, लेकिन उसके हाथ आपकी तरफ होंगे यस आई नीड योर प्रेयर, मेरे लिए दुआ करें। इसलिए कि खुदा उसको कंपेल करेगा कि इन स्पाइट ऑफ योर रिलीजियस बैकग्राउंड क्या इसको, क्योंकि तेरी जिंदगी तेरी जिंदगी की चेंज, तेरी जिंदगी की तब्दीली इस शख्स के हाथ में है, इसलिए कि इसके ऊपर मेरा जलाल है। खुदा ने कहा मूसा लिख, और मूसा ने उन टैबलेट्स के ऊपर लिखा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ खुदा अपने जलाल से इस तौर से आपको भरना चाहते हैं कि उसकी वजह से आप वो इनक्रेडिबल काम करना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी जॉब पर जाने जाएंगे, आपका बॉस आकर आपको कहेगा किस तरह से तूने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही थी, और आप कहेंगे इट्स ऑल बिकॉज आई हैव द ग्लोरी ऑफ गॉड इन मी। Oh, hallelujah. So, मूसा के ऊपर खुदा का जलाल था, और मूसा उन टैबलेट्स को लेकर नीचे आया तो हारून और 70 एल्डर्स और एबेहो और निदर और यशवा सारे के सारे वहां पर खड़े थे, और हारून आगे बढ़ा और उसने कहा मूसा cover your face quickly, cover your face। तुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, तेरे चेहरे के ऊपर खुदा का जलाल है, cover your face। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जब खुदा का जलाल आपके ऊपर आएगा आपकी खूबसूरती ऐसी हो जाएगी, लोग आपको ये कहेंगे you're different now। जो पहले आप नजर आते थे वो आप नजर नहीं आते, अब you are different। क्या वजह है आप डिफरेंट क्यों हैं? और आप उनको ये बताएंगे it is all because of the glory of God, I'm carrying the glory of God, and because you will carry the glory of God you will be different। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जिस जगह पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है खुदा वहां पर आपको इस्तेमाल करेगा। खड़े हो जाएं, खुदा उनके ज़रूरी जल्दी से खड़े हो जाएं। उसमें लास्ट बात में कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं दुआ कर रहा हूँ। भाई खड़े थैंक यू थके नहीं है आप टाइट नहीं है ना, थैंक यू जीसस। सुनिए गौर से सुनिए, खुदा का जलाल मूसा के ऊपर है और वो कह रहे हैं मूसा कवर कर अपने फेस को, वी डोंट वांट टू सी यू, वी डोंट वांट टू सी यू। किसी एक ने ये नहीं कहा मूसा वी वांट द सेम ग्लोरी। जो जलाल तेरे ऊपर खुदा का है हम भी वही जलाल चाहते हैं। किसी एक शख्स ने नहीं कहा। मेरी बहन और भाइयों, एट द एज ऑफ 80 बहुत से स्कॉलर्स बिलीव करते हैं 80 साल की एज थी जब मूसा पहाड़ पर गया था और खुदा ने उसको 10 कमांडमेंट्स दिए थे, और 80 साल से लेकर इस ग्लोरी में, इस खुदा के जलाल में नेक्स्ट 40 इयर्स तक पैसेज हो रहा है, और इन सारे 40 सालों में उसके चेहरे के ऊपर से और उसकी जिंदगी से खुदा का जलाल खत्म नहीं हुआ। जिधर वो जा रहा है खुदा का जलाल उसके ऊपर है, जिधर से वो गुजर रहा है खुदा का जलाल उसके साथ है, जिधर से वो जा रहा है खुदा की ज़ुरी उसके साथ है, और कोई उसको ये नहीं कह रहा वी वांट द सेम ग्लोरी।
हम ये जलाल चाहते हैं, हमें भी इस जलाल की जरूरत है। तो इस जलाल का बेनिफिट क्या था? सबसे बड़ा बेनिफिट ही तो ये है कि वो 120 साल तक जिंदा रहा। और खुदा के कलाम में लिखा है, ड्यूट्रॉनमी 43 चैप्टर 43 में लिखा है कि वो खुदा खुद आसमान पर से नीचे आया। God came और खुदा ने कहा मूसा अब वक्त हो गया, you have to be dead। जिसका मतलब है कि जब खुदा का जलाल आपके ऊपर होगा तो आप मर नहीं सकते। ना सुने गौर से मैं क्या कह रहा हूँ, कल को ये ना आप कहें कि पास्टर जी आप तो ये कह कर गए थे तो मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे ऊपर खुदा का जलाल था और मैं क्यों मर गया हूँ या मैं क्यों मर रहा हूँ। उसने इसका मतलब ये है कि मूसा को खुदा ने रखा 120 ईयर्स तक कि मूसा खुदा के उस असाइनमेंट को पूरा करे जिसके लिए खुदा ने उसको बुलाया था। और आप जानते हैं कि मूसा की एक वजह से खुदा ने उसको कहा कि मूसा तू उस प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जा सकेगा। इस वजह से खुदा ने उसको कहा the time has come when you have to leave, now इन सारे 120 सालों के दौरान दो काम बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं हुए। पहला काम ये, ना तो उसकी आंखों की रोशनी कम हुई और ना उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरी बहन मेरे भाई, खुदावंद आपके बदन को रिन्यू करता चला जाएगा और आपको इवन मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होगी। आपका बदन आपकी बॉडी अंदर से ही रिन्यू होती चली जाएगी और आप स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ पाते चले जाएंगे और खुदा इस सोर्स से आपको बनाता चला जाएगा, इस सोर्स से आपको चेंज करता चला जाएगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म करता चला जाएगा। नंबर 2, खुदा आपकी विजन को बढ़ाता जाएगा। और अगर चाहिए फिजिकल बात थी जो मूसा की जिंदगी थी, लेकिन मैं आपको स्पिरिचुअल मैनर में ये कहना चाहता हूँ कि खुदा आपकी रोया को बढ़ाता चला जाएगा। जितना ज्यादा खुदा का जलाल आपके ऊपर होगा उतना ज्यादा आपकी रोया बढ़ती जाएगी। ना उसकी आंखों की रोशनी कम हुई, खुदा उसको दिखाता चला जा रहा था और दिखाता चला जा रहा था और दिखाता चला जा रहा था। आपको याद है, आपको पता है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम खुदा के जलाल में होंगे एक ऐसा लिबास हमें मिलेगा जिस लिबास की वजह से हम मरेंगे नहीं, हम चेंज हो जाएंगे और हम forever। और ये कौन सा लिबास है? खुदा का जलाल। जो खुदा का जलाल है खुदा आपको देगा, खुदा की ग्लोरी आपके अंदर होगी और ऊपर होगी। और इस लिबास की वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो खुदा खुद करेगा, आप इटर्निटी में रहेंगे और आप रहेंगे और हर दिन बदलने के साथ आप रिन्यू होते चले जाएंगे। That's what God will do। लेकिन इस जमीन पर रहते हुए खुदा आपको यह दिखाना चाहता है कि जब खुदा का जलाल आपके ऊपर आए तो आप एवरी सिंगल डे तब्दील होते चले जाएं, आप कुव्वत पाकर स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ हासिल करते चले जाएं, मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। लिखा है खुदा के कलाम में ज़बूर 84 में, वो ताकत पाते हैं। ओह हालेलुया। और खुदा ये आपके साथ करेगा जब खुदा का जलाल आपके ऊपर आएगा, आप ताकत पाते चले जाएंगे। अपने हाथों को उठाएं, खुदा उनके ज़रिए वर्शिप करने वाले भाई प्लीज आप आ जाएं। थैंक यू। वर्शिप करें मेरे लिए अगर आप गा सकते हैं। हालेलुया, ओह हालेलुया, 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 हालेलुया। He propozo moko rosho toko bodisi abaka. He propozi baka bodisi borisi. He proporo rosho bodisa bakori. करे। Oh मांगे डिजायर करें खुदा के जलाल को। Lord show me your glory. 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 खुदा मुझे अपना जलाल दिखा। खुदा मुझे अपना जलाल दिखा। खुदा मुझे तेरे जलाल की जरूरत है। खुदा मुझे तेरे जलाल की जरूरत है। जब मैं जो वक्त में हूँ, खुदा मुझे तेरे जलाल की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए खुदा ये कह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए खुदा ये कह रहे हैं, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। सुने गौर से एक मिनट के लिए, सुने गौर से मेरी बात को। कुछ लोगों के लिए खुदा का बात मुझे, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा मुझे कह रहा है 3 डिफरेंट ऐसे लोग हैं, खुदा ये कह रहा है उनकी ये फाइनल डेस्टिनी नहीं है। आपको यहाँ से बहुत जल्द किसी और मुल्क में लेकर जा रहे हैं। God is taking you from here to another place। ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। खुदा के जलाल की वजह से अनएक्सपेक्टेड तौर पर
आपका वीजा अप्रूव होगा। आमेन। अब वो जगह जिसके लिए खुदा ने, थैंक यू लॉर्ड, खुदा हम ये कह रहे हैं, दो ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनको खुदा ने ऑलरेडी ये बताया हुआ कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। और एक भाई ऐसा है, थैंक यू लॉर्ड, जिसको खुदा ये कह रहा है कि मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनी। और ये इस वजह से है क्योंकि खुदा आपके जियोग्राफिक लोकेशन को तब्दील करेगा, कि खुदा आपको वहां पर लेकर जाएगा। इसलिए कि अगर आप आज ये खुदा को कह रहे हैं, खुदा मैं एजेंट ऑफ ग्लोरी हूँ, ओ मैं एजेंट ऑफ ग्लोरी हूँ, कि मैं जहां जहां पर जाऊं वहां पर ग्लोरी के लिए इस्तेमाल हूं, कि मैं वहां ट्रांसफर कर सकूं जो ग्लोरी मेरे ऊपर है। खुदा आपको लेकर जाएगा खुदा। लेकिन जितनी देर तक आप यहाँ पर हैं, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं किसी को मिलने के लिए, अगर आप अपने बिजनेस प्लेस पर होते हैं, अगर आप अपने रिजॉर्ट पर होते हैं, wherever you will be, जहां पर भी खुदा आपको लेकर जाएगा, जहां पर भी आप होंगे, खुदा वहां पर आपको अपने जलाली को एविडेंट करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए लोगों के साथ खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, वर्शिप करें।
of your blood. Hallelujah. Let's give all glory to God. Hallelujah. सारा जलाल खुदावंद को दें. Hallelujah. उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है. उसकी महिमा यहाँ पर उतर आ चुका है. वो महिमा का बादल वो शकीला glory. Hallelujah. Heaven that is touching you right now. वो आपको छू रहा है उस समय. Hallelujah. उसकी महिमा का बादल. Hallelujah. 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 इनकी धूप में Hallelujah. तुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी. और रात को तुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगा. खुदा के शक्ति का जोर तेरे ऊपर है. Hallelujah. तुझे घबराने की जरूरत नहीं है. खुदा Hallelujah. तेरा हाथ तेरे सर के ऊपर है. Hallelujah. मैंने तेरे हाथ को पकड़ कर चलाया है. Hallelujah. Give yourself to me. Hallelujah. अपने आप को सरेंडर करो. खुदा के हाथों में दे दो. He will guide you. He will lead you. वो आपको चलाएगा. वो आपको संभालेगा. वो आपके सारे प्रोविजन से पूरा करेगा. Hallelujah. आपके जीवन में खुदावंद बड़े-बड़े काम करने पर है. Just walk with God. Just walk with God. Be under His glory. His glory की ऊंची रहेगा. Hallelujah. खुदावंद आपको ले चलेगा. Hallelujah. इस गियाबान के सफर में Hallelujah. The Lord will lead you. The Lord will guide you. तेरा हाथ पकड़ के तुझे चलाने वाला खुदावंद. Hallelujah. बाप से बढ़कर, माँ से बढ़कर Hallelujah. तेरे डेस्टिनी में तुझे पहुंचाने वाला खुदावंद. Hallelujah. He will never leave you. He will never forsake you. वो हमेशा तेरे साथ रहेगा. Hallelujah. तुझे 6 मन से भी बढ़कर बनाएगा. वो never conqueror. Hallelujah. Hallelujah. सांप और बिच्छुओं को तुम रोकोगे. Hallelujah. शैतान का कोई ताकत तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा. वो glory तुझे कवर कर रहा है. वो glory तुझे कवर कर रहा है. वो मोहब्बत तुझे कवर कर रहा है. Hallelujah. उसका वादा है. उसका वादा है. वो तुझे नहीं छोड़ेगा. वो तुझे नहीं छोड़ेगा. उसकी हुजूरी में मत घुसा. उसकी हुजूरी में मत घुसा. Hallelujah. Spend time in the presence of God. आइए चर्च मिलकर पास्टर के लिए हम दुआ करें. हालेलुया उनकी मिनिस्ट्री के लिए. आमेन. हालेलुया. आई रिक्वेस्ट पास्टर शहजाद also to come. Yes. Pastor's wife कहाँ है? मेरी वाइफ जस्ट नीचे गई है. somebody is coming. कोई जल्दी से उन्होंने बुलाएगा? She's going down. Hallelujah.
The Lord has given you a special word for both of you. You look very, very good. The Lord is saying, I have called you, I have seen you faithful. मैंने आपको वफादार देखा है अपनी खिदमत में, और मैं आपका खुदा ये फरमाता हूँ, जो खिदमत आप करें मैं इसकी मदद को बढ़ा खुदा ये कह रहे 3 नए चर्चेस वेरी सून आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और आप अनएक्सपेक्टेड तौर पर ऐसी जगहों को देखेंगे जिन जगहों पर खुदा आपको लेकर जाएगा, और 2 चर्चेस आप आउट ऑफ दुबई एस्टैब्लिश करेंगे, चर्चेस आउट ऑफ दुबई। मेरे बेटे, मैं तेरा बाप ये फरमाता हूँ कि मैंने तुझे देखा है और मैंने अपनी वफादारी तेरी जिंदगी में देखी है, और बिकॉज आई हैव सीन योर फेथफुलनेस, इसलिए कि मैंने अपनी वफादारी तेरे अंदर देखी, इसलिए ना सिर्फ मैं तेरी हदूद को बढ़ा रहा हूँ, रूहानी हदूद को बढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं वो दरवाजे तेरे लिए खोल रहा हूँ जो ज़ाहिर बंद है। और देख, मैं फाइनेंशियली अपने आसमान को तेरे लिए खोल दिया है कि तू मेरी सुपर नेचुरल फेवर को अपनी जिंदगी में देख सके। जैसे जो चीज़ें तेरी आंखों ने अभी तक नहीं देखी, और जो तेरे कानों ने अभी तक नहीं सुना, और जो तेरे दिल में अभी तक नहीं आया, मैं यहोवा खुदा हूँ, तेरे खुदा ने तेरे लिए तैयार कर दिया। और मैं एल शडाई खुदा हूँ, जो मोर देन इनफ का खुदा हूँ। मैं तुझे ये फरमाता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ मेरी बेटी, और मैं तेरे साथ हूँ मेरे बेटे, और मैं ना तुमसे अलग हूँगा कभी, और ना तुमसे दस्तबरदार हूँगा। और वो बातें जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं आज और इससे पहले, जो तुमने रिकॉर्ड कर रखी हैं और डॉक्यूमेंट कर रखी हैं, मैं यहोवा खुदा ये फरमाता हूँ कि मेरी प्रोविजन तुमसे अलग न होगी, इसलिए कि मेरा जलाल तुम्हारे ऊपर है, और मैंने अपने जलाल में तुम्हें लिया है, चुना है, और तुम्हें बढ़ाया है, और तुम्हें इससे ज्यादा बढ़ाने का वादा किया है कि नेशंस के अंदर तुम मेरी बादशाहत को बिल्ड करोगे। तुम कलीसियाओं को नहीं, बल्कि मेरी बादशाहत की एम्बेसीज को बिल्ड करोगे, और तुम देखोगे कि उसकी वजह से मैं उन जियोग्राफिक एरियाज को तब्दील करता चला जाऊंगा, और उन जगहों पर अपनी कुदरत को एस्टैब्लिश करके चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर तुम मुझ में इसी तौर से कायम रहो और मेरी वफादारी से कभी अलग ना हो, तो फिर देखो कि कभी भी तुम्हारे मुंह से जो कुछ निकलेगा वो सैमुएल की तरह उसके मुंह से निकला हुआ जैसे मिट्टी में मिलने ना पाया, वैसे ही तुम्हारे मुंह से निकला कभी मिट्टी में मिलने नहीं पाया, बल्कि एस्टैब्लिश होगा, वो होगा, और मैं तुम्हारा बाप तुम्हारी जिंदगी में काम कर कायम करने का मौका फराहम करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. Amen. I am Pastor Shikari Dua Kareem. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray for his good health, his ministry. Hallelujah. Ongoing journey. Hallelujah. Khudawand ka jalal unke upar rahe. Amen. And whichever country he puts his feet upon, amen, he will see the glory of God. The churches there will see the glory of God. Amen. And there will be a mighty revival wind. Hallelujah. He will go in the spirit and power of Elijah. Hallelujah. And governments will change in Jesus' name. Nations will come at the feet of Jesus in Jesus' name. Hallelujah. And God will bless his church and raise a generation in his church. Hallelujah. Let us all pray. Everyone.
तोड़ा जाएगा हम मान रखते हैं खुदा मुलाकात तेरे बंदा के तरीके वसीले ये स्नान का जो तेरे वसीले से है आज हर तरह के बंधन टूटे हैं खुदा शुक्रगुजारी पेश करते हैं खुदा तेरे बंदा को देते हैं खुदा तेरे बंदा को जैसे कर सकते इस्तेमाल करा और कर सकते इस्तेमाल करा तेरे बंदा को देश के मतलब क्या छुपा देते हैं दिल से सारी कर देते हैं उससे करे खुदा का नाम बना सुनाती है उसके सारे दिल को लेने के लिए डांटते हैं और तेरे बंदा को खुदा के इसमें दिया तेरे देश के मतलब के खुदा पे छुपा देते जहां तेरे बंदा छाया करे खुदा वहां से जैसे तेरे बंदा के आ जाते थे लानतें जाती रही ओ खुदा तेरे बरकतें आई इसी तरह तेरा बंदा हर जगह कसरत के साथ इस्तेमाल हो तूने अपने बंदा से जो वादा किया उसके दो से कसरत इस्तेमाल करेगा वो कसरत का मसला तेरे बंदा के साथ हालेलुया और दुआ करते हैं खुदा तेरे बंदा के साथ खुदा तेरे हजूरी में ऐसे तेरे बंदा के साथ कर दे तेरा बंदा बोले भी नहीं सकता जैसे पत्थर को जो बंदा खुदा कहते हैं वो उनका सारा हालेलुया लोग शिफा पा जाते हैं वही बरकत वही वर्षा तेरे बंदा के जिंदगी में काम करता है हालेलुया जाने गुजारा करते हैं तेरे बंदा को पता भी ना हो और खुदा ताला साथ वाला बंदा शिफा पा जाए हालेलुया वहां से तेरा बंदा जहां से गुजरे वहां से खुदा का आदम हर तरह की तासीरों के असर जाते रहे हालेलुया हर तरह के डीमन स्पिरिट्स जो हैं उनके असरात जाते रहे खुदा का आदम और जैसे तुमने बंदा मूसा के साथ था तो अपने बंदा के साथ साथ है तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं खुदा के जो कल्याण तूने उसके इस दुनिया में महसूस कर रखे हैं जिसके अंदर वो अपनी असाइनमेंट को पूरी कर रहा है उस सारे वक्त में तो अपने बंदा को उकाबा की माने में उकाबा करते चले जाना और जैसा मूसा के लिए था आज वही तेरे बंदा को जारी करते हैं कि तेरे बंदा की तबाही कुव्वत काम होने ना पाए तेरे बंदा तेरे जोर तेरे बंदा और जन्म तेरा बंदा खड़ा हो जाएगा खुदा का तेरे बंदा के वसीले से तेरा जलाल वहां बरसाए हालेलुया जैसे तेरी हुजूरी मामूली तेरी शफकत आज हमने देखी है तेरे बंदा के साथ ऐसे हमेशा काम करते रहे तेरा बंदा तुझ में बढ़ता रहे उन मुल्कों के लिए उन कौमों के लिए जहां पर तेरा बंदा जाने को उनको अभी से तेरे हाथों में दे देते हैं जहां पर तेरा बंदा जाता है खुदा अंदर हालेलुया पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में लोग तेरे बंदा के वसीले से जलाल देंगे जब वो ब्राजील जाते हैं तो खुदा ताला वहां पर लोग खुदा ताला तेरे बंदा के वसीला से तेरा जलाल देंगे और लोग की जिंदगी तब्दील हो लोग के दिलों में उसी तरह चोट लगे कि जैसे पत्थर से पहला वाज किया और लोगों के दिलों पर चोट लगी हालेलुया और लोगों ने अपने आप तुझे दिया खुदा ताला ऐसे तेरे बंदे को तेरे हाथ में देते हैं जब तेरा बंदा पाकिस्तान में जाता है वहां पे कलाम करता है ब्राजील में जाता है बल्कि दुनिया के जिस हिस्से में जाए जिस मुल्क में जाए हालेलुया वो मुल्क इसके वसीले से बरकत पाए हालेलुया क्योंकि तूने अपने बंदा को चुना है ताकि वो तेरे कलाम की खिदमत कर सके और बहुतों को खुदा ताला तेरी बादशाहत के लिए नजात के अमल में दाखिल कर सके अपनी जिंदगी में दाखिल कर सके तो अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना उन मुल्कों का भी से तेरा हाथ देते हैं तो अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना उनके आने जाने में उनके साथ रहना खुदा का जिन हवाओं के सामने तेरा बंदा ट्रैवल करता है जहाजों में उन हवाओं के सामने कभी से खुदा के सोचे तेरा के मतलब में महसूस करा देते हैं हालेलुया तेरा बंदा जहां जाए वो घराने वो मुल्क का करता है हालेलुया ताकि तेरा बुजुर्ग नाम इज्जत और जलाल पाए और इरशाद आज़म ये ग्रेट कमांडमेंट का जो है खुदा ताला वो तूने अपने बंदा को दिया वो तेरा बंदा उस मिशन को कामयाबी के साथ करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देगा तेरी बादशाह को वसत देने का सबब बने तेरा शुक्र दे तारीफ करते तेरे बंदा को दरवेश के मतलब के कुदरत में छुपाते अब से लेकर जब तक तेरा बंदा ट्रैवल करता है तेरी खिदमत करता रहे तेरा देना और फुर्सत रहा तेरे बंदा के साथ बस यीशु के अजीम बाबर का जलाली नाम से सब कुछ मांग कर पा लेते हैं आमीन पास्टर साहब के लिए मैसेज भी है हालेलुया ओ हालेलुया भी बना मगर शंद बाबर से बाबर और भी बना मगर शंद बाबर हालेलुया भी बना शंद बाबर और भी बना Pastor ji, today was a challenge for us to come in the church. My daughter, all of a sudden, she got very sick in the morning. और पापू ने रात को अलार्म लगाया और सुबह उसने कहा कि तुम उठेगी और पूरा गई टू प्रे पास्टर जी के लिए सबके लिए दुआ हुई पापू ने कहा प्रे फॉर योर कार गाड़ी हमारी परफेक्टली फाइन थी वी वर इन दुबई यस्टरडे शहजाद मस्बा पे आए ही सेड प्रे फॉर योर कार हम सुबह आए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी वी ब्लेस द कार अगेन एंड वी न्यू देयर वाज अ बिग ब्लेसिंग कमिंग फॉर अस God bless you as well. The moment you stood here,
Holy Spirit started talking. I was just quiet. He said, just talk to him. The moment you were saying, Pastor Ji, there was a smoke, and the Holy Spirit started filling. That was my presence with you. Amen. Hallelujah. Seke laba raba raka la. And Holy Spirit said, the moment you were going through the mobile, searching for help, you were breathing my glory within you. Raba reke laba soko robo roko ro. खुदा कह रहा है there was so much going on in the body, लेकिन खुदा कह रहा है मेरी हजूरी ने तुझे प्योरीफाई कर दिया, तुझे शिफा दे दी. He said, how can I travel so much? And the Lord God said, I will make you travel. और पास्टर जी खुदा का रूप बता रहा था कि बर्फबारी की हो रही होती है. Out in the wilderness, आप you sweat a lot because खुदा की हज़ूरी को आप कंटेन नहीं कर पाते. इस कदर वो जलाल आपके साथ मूव करता है. But the moment I was on the knees, somebody touched me on my forehead. I opened my eyes and I saw a shepherd wearing a white gown roaming around us. And the Holy Spirit said, दाऊद की तरह जब मैंने तुझे कहा रुक तो रुका, और तूने मुझसे कहा है बाप इससे पहले कि मैं जाऊं मैं प्रीच करूं, मैं चाहता हूं कि तू वहां पे मौजूद हो. And yes, before you came, before everything started, before यहाँ की lights on हुई, he was there among us. रोको पास्टर जी, in the coming days he is going to bless you a lot. और जो असाइनमेंट की डायरी आप लिख रहे हैं, खुदा कह रहे हैं उसको बढ़ाने को 1 2 3 1000 खुदा कह रहे हैं मैंने तो तुझसे वादा किया, एक असाइनमेंट तेरे मेंटोर की तरह यू आर गोइंग टू कंप्लीट. हालेलुया. एक और बात जो आपने उसके सामने रखी, यू लेट मी नो, जब मैं तेरे पास आने को हूँ, मैं अराइव करूँ तो खुदा कह रहा है मैंने तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू. और उससे पहले खुदा कह रहा है कायम रहना, वफादार रहना. सेकंड नेवर, क्योंकि आई हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो तेरी जिंदगी में है. तो कभी नहीं जानता था मैं तुझे यहाँ तक लेके आऊंगा. पॉवर्टी, उस पॉवर्टी में खुदा कह रहा है सोको रोको 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 रोको. और रुकी सूखी में भी खुदा कह रहा है कोई था जो तेरे लिए दुआ कर रहा था, जो कोई था जो तेरे लिए हाथों को उठा के दुआ कर रहा था. आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज, आई डोंट नो, लेकिन खुदा कह रहा है सख्त गुर्बत में भी तूने कहा कि बाप तू मुझे लेगा तो मैं तेरे लिए कसरत से इस्तेमाल हुआ. एंड पास्टर जी, थ्रू योर फाइनेंसेस देयर आर सो मच जिनके घर का चूल्हा जल रहा है आज. सेकंड बरकत बिकॉज आप साफ पानी के लिए तरसे हैं, आप ताज़ा रोटी के लिए तरसे हैं. और खुदा कह रही है इसलिए हुआ कि ताकि तू उस जलाल से, कसरत के जलाल से, अबंडेंस के जलाल से उन बहुतों को खुदा कह रहे हैं मेरे नाम से रासूखा कर. खुदा कह रहे मैं जोर दूंगा, मैं तेरे बदन को कमजोर नहीं होने दूंगा. खुदा कह रहे हैं बहुत चीज़ों को फिक्स किया है और आई एम गोइंग टू फिक्स दैट. टेल योर लास्ट देने ना पड़ा बरकत सेशन ना बरकत और ना बरके ना बरकत बढ़ता चला जा रहे ना बरकत बढ़ता चला जा ना बरकत. एंड यू हैव ऑलवेज आस्क्ड कि खुदावन किसी को तैयार करके मुझसे बोले मुझे तंबीह करनी. एंड पास्टर जी बहुत कम लोग मैंने देखे जो खुदा की तंबीह को सुनने के लिए तैयार रहते हैं. यू आर वन ऑफ दोज बेस्ट पीपल आई हैव कम टू नो जो तंबीह को सुनने के लिए तैयार है. आजकल लोग तंबीह को जो तंबीह करते हैं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन यू आर वन ऑफ देम जो कहते हैं खुदावन इससे पहले कि मैं तेरी आवाज़ सुनूं मैं तेरी तंबीह सुनना चाहता हूँ. खुदा कह रहा है बहुत कुछ होगा, लग्जरीज ट्रैवल सब कुछ, लेकिन खुदा कह रहा है जस्ट स्टे ओबीडिएंट एंड हम्बल, झुकता चला जाना. खुदा कह रहा है मैं रूबरू तुझसे बात करता हूँ. खुदा कह रहा है अपनी उस डायरी को तैयार कर ले क्योंकि वो डायरी भरने को है और तुझे एक नई डायरी की ज़रूरत है अपनी सारी उन असाइनमेंट्स के लिए जो तुझे करनी है मेरे जलाल के लिए. सेकंड अबरकला बी हम्बल और झुक और वफादार हो दाऊद की तरह. और खुदा कह रहा है अगर तुझसे जाने में कहीं तू गिरता है तो मैं जानता हूँ तू हमेशा मुझे पुकारता है. और मैं खुदावन कह रहा है फौरन हाथ बढ़ा के तुझे पत्थर की तरह खुदा भी खुदा फरमाता है. आमीन. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. जोरदार ताली मैं जब दुआ कर रहा था तो मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा हो कि जैसे पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए गुजरते थे लोग, वो जब वो गुजरते थे तो उनके कहे बगैर नजात का काम होता था, शिफा का काम होता था. ये मेरी दुआ थी. लेकिन अभी जब शिमी आपके लिए आप तक पैगाम पहुंचाए थे खुदा ने मुझसे बात की
It's already happening. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप जहां से गुजरते हैं खुदा वहां शिफा का काम करता जाता है. Hallelujah. मैं नहीं इस बात को जानता था लेकिन खुदा का पाक रूह है जो हमें दिखाता है और आज यहाँ पर ये काम हुआ है. Hallelujah. All glory to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. सब बैठ जाए. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. इस समय बच्चे आगे आएंगे, गवाही होगी. ओके, बच्चे come all the children and then आप लोग में से बड़े में से जो गवाही देना चाहें आप दे सकते हैं. ओके, praise God.